reflections. So let's sit peacefully and try to observe ourselves, body, and the interaction between me and the body. Bhaiya, I just observed it. I am not the sensation, and it seems at initial stage that I am in the sensation, but after just acting according to it, it is very clear that I am separate from the sensation, because it depends on the self whether to act according to the sensation or ignore it, or like to have it, if it is whether hunger or thirst, or in the morning bell, if like in the morning, if alarm bell rings and the sensation is here to just wake up, but it depends on the self whether to sleep for some more time or whether to just get up immediately. So it's up to the self, like which sensation to be read, and I'm not in the sensation, I'm different from it. It is up to the self. Self decides. Self is the deciding factor. But Bhaiya, I just want to know, is self an abstract entity, which is it visible in any form to some extent, or is it completely an abstract entity? Abstract means, Didi, what do you want to say when you say abstract? Abstract, which we can't observe with our naked eyes, or it does not have any shape, size, which can be Okay. observed even at miniature level in form. Okay, Didi. So regarding first sharing, so as you said that I am not the sensation. Yes, yes, So this is very true, because if you observe your body, just you sit peacefully and observe your body, you will see many activities going on in body, from top to bottom, from head to leg. yes, है ना? So millions of activities are going on. Cells are composing, decomposing. So there is a maybe pain at one place. There may be yes, itching at one place. So many yes, activities are going on. But yes, I have choice to yes, read a particular sensation. है ना? So I am not bound to read each sensation. yes, I have a choice. I have a choice because I am at a distance. I am at a separation from the body. That's why I yes. have a choice. Which sensation I need to read and which sensation I don't need to read. And it also happens the other way. There's sometimes procrastination or lethargy. The self is not even, although some thing is going on in the happening in the mind, but the decision is not passed to the body to act accordingly. Whether to do this, like I have to do certain thing, but it's still going on in my mind, but I haven't passed that instruction to the body, so the task is not executed. I know I have to perform this task, but the instruction is not passed yet to the body. Yeah. So it is again my choice Yes. whether to pass instruction or not Not. pass instruction. Yes. Yeah. Suppose you have a feeling of opposition and suddenly Yes. a guest comes to your house. Now Yes. you drop that feeling of opposition, you start addressing your guest. Yes. So that feeling of opposition I did not pass to body. I have Yes. diverted myself. So this is my choice whether to pass my instruction or not to pass my instruction. And it is Yes. also my choice whether to read sensation or not to read sensation. Yes. So these choices are available because I am at separation from the body. Yes. So this is one part. Regarding second part, as you said, the abstract self as abstract.
Yes. So what has happened presently, we define everything in the domain of sensation. Okay. And so these five senses: sound, touch, sight, taste, smell. Uh, So because we have assumed ourselves as a body, so we define everything in the domain of these sensations. So for Okay. example, space. Yes. Now if I am trying to see this space with these five senses, then it may appear abstract. Okay. Similarly, the self, consciousness unit. If I am trying to see it by using five senses, it may appear abstract because you cannot see it through eyes. Okay. Now, if we observe ourselves, we have a potential to observe myself. We have a potential to see this space directly That is without my using visible. sensations. Mm. So, for That, example, if I ask, are you comfortable or uncomfortable? Can you see it or not? yeah, I can visualize that only. Not This is with one my part. eyes, but yeah. This is one part. You can visualize. But what is your state now? Are you feeling comfortable or uncomfortable? If I say comfortable, Yes. So, have you used any sensation to see this? I just perceived it, perceived the question, understood it, and within the imagination, everything has happened. Okay. So, take next question to make more clarity. You ask yourself, do you have feeling of trust for your child or not? What would be answer? Yes or no? Yes. How do you The know? answer Are you observing it through sensation? by just perceiving his activities and what I have perceived up till now about him. So you have perceived his activities through sensation. Yeah. Now, what feeling you have this time? Have you perceived this with sensation or did you observe it directly? I directly observed the activities, but whatever I concluded, that has happened inside me. So this conclusion, have you used any senses to conclude this? Sound, touch, sight, taste, smell? No, No. no, yeah. So this we need to be aware that I have potential to see myself directly. And so what has happened today? We are trying to define everything within the domain of sensation. That's why we are not able to live a fulfilling life. Okay. So this activity of realization, activity of understanding, feelings, all these I can sense through direct observation. So once you are aware of your potential to see consciousness directly, now it is no more abstract. It is a reality. It becomes a reality. It is a reality. With awareness, now you will be aware of this reality. So it continues via after the body. Then in which form it continues That again we the will see, same Didi. form? Yeah. That we will see. Let first Okay. settle the this abstract things. Okay. Yeah. So we need to redefine definition of this abstract. And So so there are finally, realities, some realities in this existence
that cannot be perceived through sensations. Okay. है ना? This reality can be perceived directly because I have that potential. Yes. So like feeling of respect, feeling of disrespect. For example, someone comments you and you are feeling uncomfortable. It is a Yes. abstract or reality? It is abstract. I can't see it. I can't observe it with naked eyes. It is like whatever it happens within me. Yes. So you can feel it or not. I can feel it. So you can feel it directly. So this is a reality. Oh, So what is a reality? See how we are defining reality. In science, we define reality that can be perceived through instrument, that can be perceived through sensation. That is only the reality, according to yes. science. Yes. But for last few months, you are observing yourself, you are observing your sanskar, you are observing your decisions, right? So Are these consciousness can reality or only. not? Yes, this is reality. So This consciousness is can a only be reality. felt. This is a reality, and we are not using sensations to see this reality. Yes. So definition of reality would be whatever exists. Either I can see it through sensation or I can see it directly is a reality. In its broader sense. Yes, that's a broader sense. In scientific language, reality is only that that can be sensed through sensation, that can be perceived through instrument only. Yes. Yeah. है ना? But one part of reality cannot be sensed through sensation. It can be seen directly. For example, tree. So if you Yeah. try to perceive this tree through sensation, you would be able to see its color, form, size only. This Yes. can be perceived only through sensation. But it is the complete reality or something else is also there. For example, self-organization. Each unit Yes. is self-organized. Yes. We. है ना? Similarly, coexistence. Each unit is coexistence, existing in submergence of space. Now, this cannot be perceived completely through sensation. Now, I need to use my direct potential. Right? So, reality means whatever exists is a reality. And that existence can be seen in two ways. Some part of reality can be perceived through sensation, and rest part of the reality we can see directly. So we have under-evaluated our potential to see the reality directly. And now we have become dependent on tools and technologies and body only. Okay. Yes. Right? Yes. We are. So it is an it is an abstract entity, but that is a reality. It is a reality, Yeah. and it exists. That's why it is a reality. Yes. That's why I am looking for happiness, prosperity, and continuity because it is a reality. Consciousness is a reality. And that's why I want feeling of trust, feeling of respect, each moment. These are reality. So Yes. We. whatever exists is a reality. And Yes. Okay. Yeah. Clear. Oh, yes. right. Now it is clear. We are. Okay. I will just observe and think more about it. Yeah. Thank you, Via. Yes, Didi. Thank you so Yes. much. Thank you, Didi. So it's time for Hindi session. है ना? So two hands are raised. We can continue tomorrow. So I request Sunil Bhaiya to start Hindi session. Namaste Bhaiya. जी भैया namaste. So thank you Gabal भैया for this enriching session, enlightening session today morning, and thank you all the correspondents for your active participation with questions and sharing in the English morning session. We switch out to Hindi. So before that, we can have this regular announcements.
You can have a look at the chat box too for this. The WhatsApp group of the morning session will be active. You can visit that every day for the daily assignments. We can do that and share our reflections from the next day. You can also watch the previous recordings of the morning session. If you miss out any of the sessions here, the links are available in the chat box for Hindi and English. And you can contact the faculty volunteers also for any assistance. Now, the conference, international conference, will be held from 22nd to 24th of November, online worldwide. We can be part of that. And the registration is still open. It will be open till 10th of November. So we can share the link to the potential delegates in and outside the country, and also to the policymakers of our institution if they couldn't register so far. And you can contact the regional coordinators for any assistance regarding this. A couple of online workshops are also announced in the month of November. One introductory FTP in English and another one in Hindi. You can see the dates and schedule in the chat box, and the link for registration is also available in the chat box. You can share this with those who could not register so far. So with this, I thank all the correspondents for your active participation once again in the English morning session. We switch over to the Hindi part. Namaste Shamla Didi for the Hindi facilitation, and Namaste Ishan Bhaiya and team for the moderation. Ishan Bhaiya, over to you now. Thank you. जी धन्यवाद धन्यवाद भैया, धन्यवाद तारा भैया, धन्यवाद गोपाल बाबू भैया। अभी हम हिंदी सत्र को शुरू करते हैं। हिंदी सत्र में सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते। नमस्ते शर्मिला दीदी। जी नमस्ते यशवंत जी, सभी को नमस्ते। सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है। हम अभ्यास 2 कर रहे हैं, जिसमें कि हम अभ्यास 1 में जो कर रहे थे, स्वयं से स्वयं को देखना, उसके साथ ही साथ हम अब शरीर को भी देख रहे हैं और हमारे और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देख रहे हैं। तो अभ्यास 2 के पहले स्टेप में ये बात हुई थी कि मैं हूँ, आई एग्जिस्ट, और मुझे पता चलता है कि मैं हूँ क्योंकि मैं अपनी कल्पनाशीलता को देख सकता हूँ। उसमें चल रही आशा, विचार, इच्छा को मैं देख सकता हूँ अपने अंदर। तो पता चलता है कि मैं हूँ। शरीर भी है, शरीर भी एक वास्तविकता है, एक रियलिटी है, जैसे मैं हूँ। और ये हमें पता कैसे चलता है? जब हम शरीर में हो रही किसी संवेदना पर ध्यान देते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि शरीर भी है। The body also exists. Body is also a reality. तो ये 2 अलग-अलग प्रकार की वास्तविकताएं हैं, ये हम देख सकते हैं। ये बात हुई थी स्टेप 1 में। स्टेप 2 में हम इन दोनों वास्तविकताओं के बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है उस पर ध्यान दे रहे थे। तो ये बात हुई थी कि हम शरीर को कुछ संकेत देते हैं। ये संकेत देना यानी कुछ सूचना हम देते हैं शरीर को। संकेत एक सूचना है, इंफॉर्मेशन है। इसी तरह शरीर में कुछ संवेदनाएं उठ रही हैं, हम किसी संवेदना पर ध्यान देते हैं, उसको पढ़ते हैं। संवेदना पढ़ना यानी कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिली वहां से। तो ये जो भी आदान प्रदान हो रहा है, इस सब को देखेंगे तो केवल सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। Only information is being passed between self and body. कुछ भौतिक रासायनिक ट्रांसफर हो रहा है, फिजियोकेमिकल ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा नहीं है। केवल सूचना का आदान प्रदान हो रहा है।
फिर स्टेप 3 में हमने ये बात रखी थी कि ये जो आदान प्रदान हो रहा है सूचना का मेरे और शरीर के बीच में, इसका निर्णय कौन ले रहा है। और हमने ये देखा कि निर्णय लेने वाले तो हम ही हैं। क्या संकेत देना है शरीर को, कब कौन सा संकेत देना है, ये सब निर्णय तो हम ही करते हैं। शरीर में बहुत सी संवेदनाएं होती हैं, कौन सी संवेदना को हमने कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है, कब उस पर ध्यान देना है, ये निर्णय भी हम ही करते हैं, भले ही बेहोशी में करें। तो जो भी हमें महत्वपूर्ण लगता है किसी क्षण, हमारा ध्यान उस पर जाता है। जो भी संवेदना हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, हमारा ध्यान उसी संवेदना पर जाता है। और बाकी जो संवेदना है, हम उनके प्रति कई बार देखेंगे तो बेहोश ही होते हैं। तो ये बात स्टेप 3 में हुई थी। फिर स्टेप 4 में ये बात हो रही थी कि जब हम किसी भी संवेदना को पढ़ रहे हैं, तो हम अपने आप से पूछें, क्या मैं संवेदना हूं? क्या मैं संवेदना में हूं? या क्या मैं संवेदना से अलग हूं? इसी को लेकर हमारा जो असाइनमेंट था कल का, वो भी था। तो जैसे शरीर में होने वाली विभिन्न संवेदनाओं का निरीक्षण करें, उनको देखें। जैसे कि कहीं पर दर्द है शरीर के किसी भाग में, कहीं खुजली है, गर्मी हो रही है, या सर्दी लग रही है, कुछ झुंझुनी सी महसूस हो रही है, सुन्न हो जा रहा है कोई पार्ट, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ये सब संवेदनाएं हैं। किसी भी संवेदना पर ध्यान दें और जांचें, क्या आप संवेदना हैं, क्या आप संवेदना में हैं, या क्या आप संवेदना से अलग हैं। तो कल पूरा दिन हम लोग इस काम को कर रहे थे। इसको लेकर अगर आप कुछ शेयर करना चाहें, कल का आपका एक्सपीरियंस, या इसको लेकर कुछ प्रश्न बन रहे हों, तो अभी उसकी बात हो सकती है। आशा है ये स्टेप हम सबको क्लियर है। यदि नहीं भी है तो इसकी चर्चा अभी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि जब दर्द शरीर में उठ रहा है, जब किसी कुछ शरीर में उसकी व्यवस्था में कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो कभी कभी ऐसा लग सकता है कि बहुत जब तीव्र संवेदना हो कि हम उसी का एक भाग बन जाते हैं। लेकिन होश पूर्वक देखेंगे तो ये दिखाई देगा कि हम तभी भी संवेदना को अलग देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। वेंकट राव जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। सबका क्विक फॉरेस्ट। कल कल आपका जो बात कर रहा ना ये, और आज इंग्लिश सेशन में गोपाल साहब, गोपाल भैया भी
बता दिया। सो अलग देखे तो रियलिटी दिख रहा पूरा, the independent of all the sensation, and we are observing what is the reality. हम्म So पूरा शांति आ रहा, जो मेडिटेशन करने के समय में सब पहले जो मेडिटेशन कर रहा थोड़ा बॉडी में पेन्स आ रहा, बाद में रोज रोज प्रैक्टिस करने के बाद में मेरे को पूरा इंडिपेंडेंट हो गया बॉडी से, पूरा शांति आ रहा है, इंडिपेंडेंट से थिंक कर रहा, बहुत शांत में आनंद भी देख रहा हूँ मैं। और मैं बचपन से मैं एक आशा है, मेरा मदर सेकंड सेकंड 2 साल में मर गया, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान के, मेरा मदर का फेस नहीं है, मालूम नहीं है मेरा, लेकिन मैं प्रार्थना करके करके इतना सारा प्रयास किया, मैं कुछ भी फिक्र नहीं मिला मेरा भगवान से। मैं एक 2 महीने से मैं ट्राई कर रहा हूँ ये मेडिटेशन में। मेरा माता शारदा माता दर्शन किया, उन्होंने एक फोटो ड्राप दिया, ये फोटो में एक फेस आया मेरा, ये मैं मदर है, एक कंपेयर कर रहा हूँ मैं, मेरा मदर का बहन 2 है, ये 2 का मैच हो रहा ये फोटो। सो ये कैसा ये हो गया मेरे को समझ नहीं आ रहा मैडम, ये भगवान मेरे को देख रहा पड़ा, ये आपके प्रैक्टिस के बाद में आप जो बता रहा ना, ये कंटिन्यूस मैं कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये रिजल्ट आया मेरे को, मैं बहुत आनंद कर रहा हूँ मैडम। तो इतना प्रैक्टिस कर रहा रोज, इतना बात कर रहा हूँ, अब बहुत आनंद में आई, अभी अलग देख रहा हूँ मैं, आज कल से मैं पूरा फ्री हो गया। और जो गोपाल साहब बात किया ना, आज ये पूरा समझ हो गया। आप बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ आप सब लोग को, इतना प्रैक्टिस करके सो अलग के नित्यानंद के लिए जो जो हम लोग को होना, ये सब सबको सब सब मिल रहा मेरे को, एक एक प्रैक्टिस करे तो ये सब हो रहा, बहुत नित्य आनंद में। जो पहले जो मीटिंग में गए तो ये लोग बोला आपको कुछ भी चिंता करो, ये सब हो जाता बोल के, भाई अभी मेरे को मालूम हो रहा मैडम, ये सब हो रहा, ये मैडम। जी थैंक यू, थैंक यू दीदी, बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ आपको, ये भगवान रूप से आप आ रहा, हम लोग रोज रोज ऐसा बता रहा सर्व शांत के लिए, ये बहुत प्रयास कर रहा, मैं सबको मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, ये भगवान रूप से आप आके फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड एंड बेनिफिट ऑफ थ्रोट को एग्जिस्टेंस, इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा आप लोग, मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ भगवान रूप से, मैं बहुत आनंद कर रहा हूँ, भगवान ऐसा आदमी को हम लोग को दिया, ये ज्ञान से मैं कुछ तो सोसाइटी को मैं पक्का करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ मैं, ऑलवेज आई एम रेडी, वाट यू आर ऑर्डर दे रहा मेरे को, मैं पक्का अनुकरण करता हूँ मैं, ये बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद वेंकट जी। सबसे पहली बात तो बहुत अच्छा लगा कि आप आराम में आ रहे हैं। काम में बहुत सारे हैं। तो यही मतलब उद्देश्य यही है एक तरह से इस पूरे काम का, कि हम सब समझ की ओर बढ़ पाए, धीरे धीरे आराम में आते जाएं, है ना। अभी ये दिखेगा कि हम
जानना चाहते हैं, सब कुछ के बारे में जानना चाहते हैं, है ना। हम पूरा अस्तित्व, उसमें क्या क्या है, कैसे क्या है, उस सब के बारे में हम जानना चाहते हैं। ये हम सब में ही एक जानने की इच्छा तो बनी ही हुई है ना, आवश्यकता भी है। वी ऑल हैव अ नीड टू नो। उस आवश्यकता को पूरे करने के लिए ये एक माध्यम हो सकता है। तो इस माध्यम से हम इस प्रयास को कर रहे हैं, ठीक है ना। कर रहा मैं, बहुत प्रयास कर रहा मैडम। आपके आशीर्वाद से मैं थोड़ा पूरा मालूम हो रहा है क्या करना, आदमी जिंदगी में कि क्या करना, ये सब मालूम हो रहा है मैडम। तो बढ़िया है कि हम सब प्रयास कर रहे हैं। बहुत प्रयास इसलिए कर मैं रहे हैं। एक बात कहूंगी कि अभी उन बातों को हम खुला रखेंगे कि जब हम बोलते हैं ना भगवान, तो उससे क्या हम अर्थ निकाल सकते हैं। तो एक हो सकता है कि हम जैसे अपने आप को एक शरीर के रूप में देखते हैं, तो वैसे ही हम अपनी कल्पना में ऐसा चलाते हैं कि भगवान भी मनुष्य रूप में कोई होगा। पक्का मैडम, ये मालूम हो रहा है मेरे को पूरा। एक मिनट, मालूम मैं हो रहा है बात मन में। पूरी कर मन लूं, है ना, बात पूरी कर लेते हैं। तो इसको जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करेंगे, तो अभी जो बात हो रही है कि हमने अपने आप को शरीर जैसा माना, तो वो जो शरीर का जो रूप है, शरीर का जो फॉर्म है, वो हमें आंखों के सामने दिखता है। लेकिन ये तो शरीर है, ये तो जड़ है ना। लेकिन मैं कौन हूं? मैं तो चैतन्य हूं। मैं इस शरीर से एक भिन्न इकाई हूं। जैसे जैसे इस पर हमारा ध्यान जाएगा, तो हमें ये भी दिखेगा कि ये जो चैतन्य इकाई है, जिसको ना हमने मैं बोला, मैं हूं। अब ये जो चैतन्य इकाई है, इसको हम अपने शरीर की आंखों के माध्यम से नहीं देख पाते। शरीर को हम देख सकते हैं आंखों के माध्यम से, लेकिन मैं, जो ये वास्तविकता है, इसको हम शरीर की आंखों के माध्यम से नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत सटल है, ठीक है ना। और जैसे जैसे इस पर ध्यान जाता है कि मैं जो कि सूक्ष्म हूं, मेरे अंदर जो क्रियाएं चल रही हैं, कुछ क्रियाएं हम अभी अपने अंदर देख पाते हैं। ऑफ कोर्स शरीर के माध्यम से तो कुछ भी नहीं देख पाते अपने बारे में, लेकिन जैसे जैसे हमारा ध्यान अपने अंदर जाता है, बिना शरीर की सहायता लिए हम अपने अंदर बहुत कुछ देख पाते हैं। हम ये देख सकते हैं कि हमारे अंदर कुछ क्रियाएं चल रही हैं। जैसे जैसे हमारी देखने की सूक्ष्मता बढ़ेगी, वैसे वैसे अपने अंदर जो और सूक्ष्म और सटल जो एक्टिविटीज हैं, क्रियाएं हैं, उन पर भी हमारा ध्यान जाएगा। जो हमने कहा B1 ब्लॉक या ऊपर की क्रियाएं। जैसे जैसे हमारी सूक्ष्मता, देखने की सूक्ष्मता बढ़ेगी, वैसे वैसे ये जो और सूक्ष्म क्रियाएं हैं, उनकी तरफ ध्यान जाएगा और दिखेगा कि जो सबसे सूक्ष्म क्रिया है हमारे अंदर, अनुभव की क्रिया, वहां से जब हम देखते हैं,
तब हम ये जो पूरा इसका अधिष्ठान है, जो फाउंडेशन है, वो भी देख सकते हैं। तो धीरे धीरे ये जो सह अस्तित्व है, इस पर भी ध्यान जाएगा, इसको भी हम देख पाएंगे। ये जो क्रिया और क्रिया शून्य, जिसको हम शून्य भी कहते हैं कभी कभी, इन दोनों का जो सह अस्तित्व है, इसको भी देख पाएंगे। तो वो जैसे जैसे दिखता है, वैसे वैसे ये तय होता है कि ये पूरे अस्तित्व में संबंध है, व्यवस्था है, सह अस्तित्व है, ऐसा ही है। और इसका जो प्रतिबिंब है, वो हमारे अंदर, हर एक मानव के अंदर है ही। इस प्रतिबिंब पर जब हमारा ध्यान जाता है, जिसको हम सहज स्वीकृति कह रहे हैं, जो कि अनुभव की क्रिया के वहां पर बनता है प्रतिबिंब, उसको हम देख सकते हैं। तो जब हम उस पर उसको रेफर करते हैं, अपनी सहज स्वीकृति को, तो ये हमें धीरे धीरे दिखने लगता है। अभी हम भले ही अनुभव की क्रिया तक ना भी पहुंचे हों, तो भी इस प्रतिबिंब का हल्का सा आभास हमें होता ही रहता है। इसी को हमने कहा सहज स्वीकृति। इस बात को जैसे जैसे हम गौर करेंगे, तो दिखेगा कि ये हम सबके अंदर एक भाग है ही, जो कि प्योर है, जो कि श्रेष्ठ है, जो कि हम जो क्वालिटीज भगवान को कहते हैं ना, वो क्वालिटीज हैं, उसमें डिवाइन है। और ये भाग हम सबके अंदर है, हर एक के अंदर है। तो यहां से हम प्रेरणा ले सकते हैं। जो भी हम जानने की इच्छा रखते हैं, वो सब यहाँ से अवेलेबल है हमें। आज के दिन हम कंप्यूटर पे, गूगल पे जाते हैं, कुछ प्रश्न उठता है तो आंसर मिलता है, फिर हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब हम उसको जब चाहे तब एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह हमारे अंदर ये क्षमता है कि हम जो भी जानना चाहें, वो सब का जो इंफॉर्मेशन है, वो हमें मिल सकती है सही मायने में। क्योंकि जो फाउंडेशन है, उसका प्रतिबिंब हमारे अंदर है ही। एक तरह से वो फाउंडेशन ही हमारे अंदर है, क्योंकि हम भी ये क्रिया और क्रिया शून्य के सह अस्तित्व में बने ही हुए हैं। तो ये दिखेगा कि हमारे अंदर ये क्षमता है ही। तो बहुत से प्रश्न जब हम पूछते हैं अपने अंदर, तो इन सब के उत्तर हमारे अंदर से मिल ही सकते हैं। केवल हमें इसके लिए खुला रहने की आवश्यकता है, प्रयास पूर्वक अपने अंदर काम करने की आवश्यकता है, और अपने अंदर की जो ऊपर की क्रियाएं हैं, उनके प्रति धीरे धीरे जागृत होने की आवश्यकता है, ताकि हम उस स्थिति में हो कि जब भी हम चाहें, हम ये पूरे ज्ञान को हम एक्सेस कर पाए। तो वो पॉसिबिलिटी हम सबके अंदर है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस बात को देख पाए हैं और वहां से
वो पूरे ज्ञान को डाउनलोड कर पाए हैं, और कुछ लोग, हम लोग जो है वो प्रयास कर रहे हैं उसका। तो अभी हम ऐसा कुछ लेबल लगा देते हैं कि ये मानव अच्छा है, ये बुरा है। तो कर्म जो भी कोई कर रहा है, जो भी निर्णय कोई ले रहा है, इसको ऐसा देखेंगे कि समझ के साथ ले रहा है या नासमझी में ले रहा है। तो फिर ये अच्छा और बुरा, इसकी परिभाषा बदल जाती है हमारे लिए। फिर कोई भी बुरा नहीं दिखता। फिर ऐसा दिखाई देता है कि हर किसी में वो क्षमता जो है वो तो है ही। कोई उस क्षमता को देख पा रहा है, उसके लिए प्रयास कर रहा है। कोई अभी नहीं देख पा रहा, तो वो बाहर ही अपना सुख ढूंढ रहा है। तो ये सब पॉसिबिलिटीज हम इन सबको खुला रखें कि अभी हम जो भगवान कहते हैं वो एक्चुअली है क्या, और हम कैसे उसको देख रहे हैं, या कहाँ से हम इंस्पिरेशन ले रहे हैं, है ना। इन सबको अभी खुला रखें, क्योंकि ये बहुत गूढ़ बातें हैं जो कि मुझे लगता है कि जैसे जैसे अपनी सूक्ष्मता बढ़ेगी वैसे वैसे हम इसको देख पाएंगे। बहुत से जो सेल्फ हैं, चैतन्य वास्तविकताएं हैं, जो कि मानव रूप में भी रहे ही हैं, है ना। हम सभी, ये भी बात हुई है कि सेल्फ या जो चैतन्य है वो निरंतर बना रहता है। जो जड़ है, शरीर है, वो मृतक है ना। उसका जन्म होता है, मृत्यु होती है, लेकिन सेल्फ तो निरंतर बना ही हुआ है। तो बहुत से श्रेष्ठ जो विचार रखने वाले, जो अनुभव की क्रिया तक पहुंचने वाले और वहां से देखने वाले, जो चैतन्य, जो ऐसी इकाइयां थी, वो अभी भी बहुत से लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और हम उनके बारे में जितना भी जानते हैं या जितना भी उनके बारे में पढ़ते हैं, उन सब से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि हमारा भी करना उसी तरह हो जाए, हम भी वैसे ही बन जाएं, और वैसे ही हम और मानवता के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाए, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाए। तो ये सब पॉसिबिलिटीज हैं अपने लिए। तो इन सब को भी हम धीरे धीरे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है ना। नहीं, बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। तो बहुत धन्यवाद। जी, शशि शर्मा जी। नमस्ते दीदी, मेरी नमस्ते। आवाज आ रही है? जी, आ रही है। अम, दीदी, मुझे आपका माइक म्यूट हो गया। अ, आवाज हाँ आ रही दीदी? जी, आ रही है। दीदी, मैं इन दो बातों में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही कि क्या आप संवेदना है या क्या आप संवेदना में है। तो संवेदना है और संवेदना में होना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जैसे कि आप, वो पूरी एंटिटी जो हमने कहा कि संवेदना है, वही संवेदना ही आप है, या उस संवेदना में आप एक छोटा सा भाग है। ये दो अलग बातें हैं ना।
आप संवेदना को छोड़ दीजिए, एक सर्कल आप इमेजिन करिए, एक कुछ सर्कल है। आप या पूरा सर्कल है, यही आप हैं, या आप एक डॉट है इस सर्कल के अंदर, उसमें है। ये दो अलग बातें हुई ना। हाँ, तो वैसा ही कुछ तात्पर्य आप निकाल सकते हैं इसमें से। क्या पूरा संवेदना आप ही हैं, या आप पूरी तरह से उसी से घिरे हुए हैं और आप उसी में हैं, उसी का एक भाग है? ये दो अलग प्रश्न हुए, लेकिन तात्पर्य मेनली इस पूरे स्टेप का देखने का मतलब, ये मेन जो बात है वो देखने की ये है कि क्या हम इस संवेदना से अलग हैं, थोड़ी हाँ, दूरी से इसको देख सकते हैं। वो देख पाती हूँ दीदी, मतलब पर इन दो पर्टिकुलर चीजों में मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाती कि मैं संवेदना हूँ या मैं संवेदना में हूँ। ये मतलब लॉजिकली आपको दिख रहा है, ये लॉजिकली समझ में आ रहा है, अ, लॉजिक। ये जो संवेदना से डिफरेंट, मतलब मैं संवेदना से अलग हूँ, इस चीज को लॉजिकली के अलावा, मतलब लाइक मैं मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं संवेदना में ही मतलब इंडल्ज हो जाती हूँ, लाइक मैं संवेदना ही हो जाती हूँ। अब संवेदना में होती हूँ मुझे नहीं पता, या संवेदना हो जाती हूँ ये एग्जैक्टली नहीं कह सकती, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वही चल रहा होता है। कभी कभी जब एक्सरसाइज करती हूँ या अवेयर होती हूँ, पर्टिकुलर इस चीज को देखने की कोशिश करती हूँ, तो ये महसूस कर पाती हूँ कि मैं संवेदना नहीं हूँ। विशेष रूप से मतलब अब इन चीजों पे ध्यान जाने लगा है कि अगर कोई प्रिय संवेदना आ रही है, जैसे किसी चीज का टेस्ट लेना है, या कोई जैसे स्पर्श होता है ना, कि कोई प्यार से छूता है, या कोई प्यार से बात करता है, तो वो अनुकूल संवेदना हो गई। तो देख पाती हूँ कि वो जो एक आवाज या जो स्पर्श, मतलब जो का जो संवेदना आई है, उसको मैं क्या अर्थ दे रही हूँ, तो उसको अलग होके देख पाती हूँ। और इसी तरह से पेन है, उसको भी मैं अपने मतलब डिटैच होके देख पाती हूँ कि ये बॉडी है, लाइक समवेयर फ्रॉम आउटसाइड, कि ये बॉडी है और इसमें ये संवेदना हो रही है और मैं इसको पढ़ रही हूँ। और इसको प्रैक्टिकली मैं इस तरह से देख पाती हूँ, स्पेशली पेन को, कि जब मैं किसी काम में बहुत मतलब फोकस्ड होती हूँ, इंडल्ज होती हूँ, तो वो संवेदना नहीं हो रही होती है। एंड जैसे ही मेरा उस काम से ध्यान, मतलब या तो काम हो जाता है या उससे ध्यान हटता है, तो अगेन आई स्टार्ट फीलिंग द पेन। तो इस पर्टिकुलरली इस एक्सरसाइज से मैं ये कह सकती हूँ कि इसको तर्क के आधार पर नहीं, विचार के आधार पर नहीं, इसको मैं मतलब ऑब्जर्व कर पाती हूँ। ठीक बात है, यही करने का काम है। इसमें भी जो आपने कहा ना कि जब आप किसी चीज में इंग्रॉस्ड होते हैं तो संवेदना होती नहीं है, होती हाँ, नहीं है, या वो पढ़ते संवेदना पढ़ते तो नहीं। बनी रही थी, हाँ, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं रहे थे। पढ़ नहीं रहे थे, हाँ वही तो मेरा। लॉजिकली भी ये दिखता है कि मैं संवेदना नहीं हो सकती, या उसी में एक उसी का भाग नहीं हो सकती, नहीं तो मुझे पढ़ना ही, मैं पढ़ने के लिए बाध्य होती। हाँ, बिल्कुल। वो लॉजिकली भी दिखता है, बट आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है कि यही करने का है, इस स्टेप का हाँ, यही आशय था। बस वो यही अटक रही थी कि ये समझ में नहीं आता था कि मैं संवेदना हूँ या संवेदना में हूँ, इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाती। हाँ, मेन करने का काम यही है कि अपने आप को हम संवेदना से अलग देख पाए, जी। नहीं तो हम संवेदना हम पर हावी हो जाती है कि नहीं? लेकिन जब जब हम संवेदना को अपने से अलग देख पाते हैं, तब तब हम उसको जिम्मेदारी से आगे क्या करना है वो निर्णय ले पाते हैं।
ना? दीदी यहाँ एक शेयरिंग और करना चाहूंगी। मैंने शायद पहले डिस्कस किया है कि मुझे फाइब्रोमाइल्जिया की प्रॉब्लम है, तो आई हैव पेन इन माय बॉडी। तो मैं वो मतलब मुझे काफी परेशान करता है। तो अभी कुछ समय से मैं ये अपने आप में देख पाई या ये एक्सरसाइज कर पाई कि उस पेन की वजह से मुझे बहुत मेरे अंदर विरोध रहता था कि मुझे ये पेन क्यों है, और मैं उससे बचने की हमेशा मेरा ये प्रयास रहता था कि अ, मतलब मुझे उस पेन के प्रति विरोध सा रहता था कि क्यों मुझे दर्द रहता है, क्यों मुझे दर्द रहता है। अभी मैं कुछ ऐसा देख पाई कि ओके, देयर इज पेन, और मुझे इसके प्रति विरोध नहीं करना है। तो अचानक मतलब मुझे लगा कि जैसे ही मैंने उस पेन के प्रति अपने विरोध के भाव छोड़े, तो मैं आराम की स्थिति में आई कि ठीक है, ये जो कंडीशन है उससे मुझे पेन होता है। तो मैं हमेशा मतलब उसी स्थिति में जीती थी कि आई हैव फाइब्रोमाइल्जिया एंड आई हैव पेन। तो मैं अपने आप को उस पेन से आइडेंटिफाई करने लगी थी कि मी मीन्स द पेन। लेकिन अब मैं आप अपने आप को उससे अलग करने की कोशिश कर रही हूँ कि मी डजंट मीन्स द पेन। I am different from the pain. Pain is there in the body. There is a condition in the body which causes the pain. But it doesn't mean मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वो पेन हूँ। तो अब ये प्रयास कर रही हूँ कि उसके प्रति विरोध नहीं आए, या उससे बचने का, या वो जो एक छटपटाहट रहती थी कि ना कि मुझे इतना दर्द क्यों रहता है, अब मैं प्रयास कर रही हूँ कि उस पेन से मैं उतनी ज्यादा प्रभावित ना हो। तो ये प्रैक्टिस ठीक है दीदी, ये इसी संदर्भ में है जो हम सेकंड करते हैं अभ्यास। जी, बढ़िया है, ये ठीक है। देखिए, अभी तो हम मान के चलते हैं कि शरीर में कुछ भी कभी भी हो जाता है ना, हम्म और हम उसकी जिम्मेदारी नहीं ले पाते क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता हो क्यों रहा है। हम्म बट ये धीरे धीरे जैसे जैसे इस बात के खुलापन को साइंस भी देख पाएगा, तो और रिसर्च करेंगे, तो हो सकता है हमें ये भी पता चले कि जो हम विरोध करते हैं अपने अंदर, हम्म या सहज स्वीकृति से अलग भाव रखते हैं, हम्म तो उनके तहत कितनी बीमारियां शरीर में आती हैं, जिसको अभी हम ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं, जी है ना। कि अम, शरीर में जो क्रियाएं होनी चाहिए एक व्यवस्थित ढंग से, वो हम्म व्यवस्था के अगेंस्ट ही चलने लगती हैं। तो वैसा हम्म क्यों होता है, उसके पीछे भी रिसर्च होनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि जो सेल्फ में अपने अंदर सहज स्वीकृत भाव नहीं रखें, विरोध में रहें, हम्म गिल्ट में रहें, शेम में रहें, तो उससे हम्म क्या होगा शरीर में। क्योंकि एक तरह से जब हम गिल्ट, शेम, या ना एक तरह से अपने अंदर जो जो भाव, विरोध के भाव इस तरह के रखते हैं, स्पेशली अपने खुद के लिए। बहुत लोग हम्म कहते हैं ना कि हमें अपने ऊपर ही गुस्सा आया कि हमने ऐसा क्यों किया, हम अपने लिए ही हम्म विरोध में आ गए। तो हम्म इन सब का भी शरीर पर तो प्रभाव पड़ेगा ना। हम्म तो वो सब में भी रिसर्च होगी तो फिर पता चलेगा और डिटेल में कि क्या क्या हो रहा है, जिसके अभी हम जिसको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं, और ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनका हम्म हमें पता ही नहीं क्यों होता है। तो उसका इलाज भी कैसे होगा ठीक से, जब हम्म हमें पता ही नहीं उसका कारण क्या है। लेकिन जी जैसे जैसे हमारा ध्यान जाएगा उस पर कि ये पॉसिबिलिटी भी है, और हम रिसर्च करेंगे, और जैसा आपने किया अभी ना, हम्म कि अपने हम्म अंदर सही भाव लाएंगे, तो हम्म क्या इन सब बातों से कुछ फर्क पड़ेगा शरीर की हम्म कंडीशन पे। और हम्म दूसरी भी बातें हैं जो जिम्मेदारी लेंगे। शरीर क्योंकि जड़ इकाई है, जड़ के लॉज से चलती है। जैसे जैसे उसको समझेंगे, उसको व्यवस्थित ढंग से रखेंगे, तो वो हम्म अपनी व्यवस्था में बना ही रहेगा ठीक से। तो जी वो सब पॉसिबिलिटीज को हम खुला रख सकते हैं फिर। ठीक है। जी दीदी, ठीक थैंक यू सो मच दीदी। है। जी बढ़िया। तो
एक दो और ऑब्जर्वेशंस ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अंकित गुप्ता जी। जी नमस्ते मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी मैम, मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे अभी हम इस चीज कंटेंट को बार बार इसको पढ़ रहे हैं हम, तो जैसे हमारे दिमाग में कुछ ऐसा चीजें आती हैं तो हम लॉजिकली उसको जस्टिफाई कर लेते हैं, मतलब सेटिस्फाई हो जाते हैं उसको, कि चेंज कर लेते हैं उसको, विचार को। लेकिन फीलिंग्स जो है वो तो शायद वो बनी है वैसे ही विरोध वाली। हम्म। तो लॉजिकली शायद हम उसको कर लेते हैं उसको, मतलब हम क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इस कंटेंट को, इस वजह से लॉजिकली हम उसको कर लेते हैं कि हम उसको शांत कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं उनको, विचारों को। हम्म। बट फीलिंग्स में तो शायद वो दोबारा से वैसी इंटेंसिटी रहती है, जब भी दूसरी सिचुएशन में आते हैं तो सेम इंटेंसिटी से ही रहती है। तो जी इसमें मैं कुछ इनपुट दे देती हूँ कि जब तक हम जो है नीचे की क्रिया को ठीक करेंगे, है ना, लेकिन ऊपर की क्रिया तक नहीं जाएंगे, तो ऊपर की क्रिया से ही नीचे की क्रिया चलेगी। जो ज्यादा सूक्ष्म है, समझो उसी का राज चलता है। तो एक तरह से जब हम व्यवहार ठीक करने जाते हैं लेकिन विचार को ठीक नहीं करते, तो वो सस्टेन नहीं कर पाता। कुछ क्षणों के बाद फिर हम उस पर ध्यान हमारा छूट जाता है, हम अवेयर नहीं होते हैं, और फिर वही गलती हो जाती है व्यवहार में, है ना। तो व्यवहार के पीछे विचार को देखना जरूरी है। जब हम विचारों को देखने जाते हैं, जो आपने कहा लॉजिकली हम उसको जस्टिफाई भी कर लेते हैं, वो लॉजिक विचार तक ही चलेगा। भाव लॉजिक से और सूक्ष्म है, उसको हम फील कर सकते हैं, इसलिए उसको कहा फीलिंग, है ना। तो जब तक हम विचार के पीछे भाव को ठीक नहीं करेंगे, तब तक वो विचार तो वैसे ही फिर से वैसे ही बनेगा जो आपने अभी मेंशन किया। फिर जब हम भाव को ठीक करने जाते हैं, तो ये भी दिखेगा, जब धीरे धीरे भाव दिखने लगता है और हम भाव को भी ठीक कर पाते हैं, तो फिर दिखेगा कि जब तो हमारा भाव हमने अभी ठीक किया, अभी लगा कि हाँ हम समझ में आ गया और अभी हम आराम में भी आ गए, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि फिर से वो भाव बदल गया, तो हमें दिखेगा कि क्षण क्षण में हमारा भाव भी बदल सकता है। तो उसके पीछे जो हमने माना हुआ है, जो हमारी स्वीकृतियां हैं, तब दिखेगा कि वो इस भाव को चला रही हैं। तो हमें अपनी स्वीकृति, अपनी मान्यताएं, जो भी हमने माना हुआ है, उसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो उसको कैसे ठीक करेंगे? तो हमारी सहज स्वीकृति को रेफर करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम अपनी सहज स्वीकृति को रेफर करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी स्वीकृतियां, हमारे भाव, हमारे विचार, हमारा व्यवहार सब उसके लाइन में आने लगता है। तब सही मायने में उसको हम सस्टेन कर सकते हैं। तो वो जो बात हो रही है प्योर ऑब्जर्वर, शुद्ध दृष्टा, वहां से कंटिन्यू देख पाना, निरंतर वहां बने रहना, उसी को कहा सजगता, है ना, अवेयरनेस। वो अवेयरनेस हमें हर क्षण चाहिए, वरना स्लिप होंगे और गिरेंगे। ठीक है ना। जी। पर मेरा मतलब ये है कि जैसे हम लोग इतने बिजी रहते हैं कामों में, तो हर समय मतलब कैसे पॉसिबल होगा ये कि हर समय हमारा ध्यान जाए? देखिए, शुरुआत आप रिमाइंडर के साथ कर सकते हैं अपने लिए, है ना। जी अभी हम चाह रहे हैं कि इतना लंबे समय से हम इसी तरह चलने के अभ्यस्त हो गए, अब हम चाह रहे हैं कि कुछ ही महीनों में ये सब बदल जाए,
तो इतना जल्दी नहीं होगा ना, समय तो लगेगा थोड़ा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब भी हम सजग होते हैं उसी क्षण हम ये देख पाते हैं कि हमने भाव ठीक किया तो हम आराम में आ गए। तो आगे जी के लिए यही मोटिवेशन बन जाता है कि हम ये जो आराम हम महसूस कर पाए, ये बाहर की परिस्थिति से अलग है, बाहर की परिस्थिति पर डिपेंडेंट नहीं है। ये बात जैसे जैसे हमें दिखने लगती है तो यही एक मोटिवेटिंग फैक्टर, एक तरह से एक रिमाइंडर हो जाता है हमारे लिए कि ऐसी ही स्थिति हम चाहते हैं। एक्चुअली हम दूसरे को ठीक करना नहीं चाह रहे थे, हम तो आराम चाह रहे थे। ये मेन बात थी, ये दिखने लगता है। फिर जब हम आराम में आ जाते हैं तो ये भी दिखाई देता है कि दूसरा मेरा संबंधी ही है, और एक बहुत ही नेचुरल ढंग से हम दूसरे की सहायता करने के लिए आगे हाथ बढ़ाते हैं। तो वो धीरे धीरे होगा टिल दैट बिकम्स आवर वे ऑफ लाइफ। वही हमारा देखने का नजरिया हो जाता है सब चीज का, है ना। हम अपना संबंध हर इकाई से देख पाते हैं, हर एक के लिए हम अपनी भागीदारी निश्चित रूप से देख पाते हैं, कर पाते हैं, और उन सब में हम आराम में बने रहते हैं। तो वो धीरे धीरे होगा, ठीक है ना। जी जी ठीक। बढ़िया है। एक और ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बरखा जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। ये जो अभी चल रहा है संवेदना, मैं खुद हूँ या मैं मैं उसको फील कर रही हूँ, तो एक प्रश्न उठता है कि किशोरावस्था से लेके रजोनिवृत्ति तक बॉडी में बायोलॉजिकल चेंजेस के कारण, मतलब जो साइकिल है बायोलॉजिकल, तो हर महीने महिलाओं को एक जो दर्द होता है, उस दर्द को जैसे अभी ध्यान कर रहे हैं तो संवेदना को अपने से अलग समझ पा रहे हैं, परंतु जब उस फीलिंग से गुजरते हैं तो उस संवेदना में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा कि उस दर्द से अपने आप को अलग कर पाए? देखिए, अभी भी जब हमारा ध्यान उस पर जाता है जी तब हमें दिखाई देता है कि दर्द है। जो अक्सर हम एग्जाम्पल लेते हैं ना, कि कोई फुटबॉल प्लेयर है, वो खेल जी रहा है, पैर पे बॉल बहुत जोर से लग गई, चोट लग गई, खून बह रहा है, लेकिन उसका ध्यान ही नहीं जाता उस तरफ, क्योंकि वो गोल बनाने के पीछे भाग रहा है। जी और जब गोल हो जाता है, गेम खत्म हो जाता है, तब उसका ध्यान जाता है तो अरे खून बह रहा है, फिर उसको अटेंड करता है। तो अब ऐसा है जी कि संवेदना थी ही नहीं, या ऐसा है कि संवेदना पर हमारा ध्यान ही नहीं गया, है ना। जी। तो तो दिखेगा कि बहुत सी संवेदनाएं ऐसी हैं जिन पर हमारा जब ध्यान नहीं जाता तो हम ऑलरेडी अभी भी उनको नहीं पढ़ते, तो हमारे लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसे लगता है हो ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, है ना। जी तो तो जैसे ये जो नॉर्मल संवेदना है, ठीक है, उनको तो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं और उससे अपने आप को अलग सेपरेट समझ पा रहे हैं, पर जब ये तीव्र संवेदनाएं रहती हैं, दर्द अधिक होता है, महिलाएं खासकर इसको अच्छे से समझ पाती, हमने कुछ गलत खाया या हमारे जीवन में कुछ हमने सोए नहीं या अधिक कंप्यूटर यूज कर लिया, सिर दर्द कर रहा, तो इसके लिए तो हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। पर ये वाला जो है, इसमें आपने बताया कि कोई भौतिक रासायनिक इंटरचेंज तो होता नहीं है बॉडी और मैं के बीच में, परंतु वो जो संवेदना है वो हमको प्रभावित बहुत ज्यादा कर देती है कि मतलब फिर हम उसको अपने आप को उससे सेपरेट नहीं रख पाते, तो वही उस दर्द को बहुत मतलब महसूस करते हैं। और ये मतलब महिलाओं की खासकर, क्योंकि बाकी चीजें तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए, कि हमने ज्यादा खा लिया तो पेट दर्द हुआ, या गलत खा लिया सिर दर्द हुआ, कि हमने टेंशन लिया या इस तरह से,
पर ये चीज में तो मतलब बॉडी का वो जो है एक सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उसके तहत हो रहा है। और देखिए वो जो, हाँ इसमें भी ना, अभी जो आपने बात कही, जवाब आपका उसी में छुपा हुआ है। आपने कहा हम इस चीज से प्रभावित हो जाते हैं, जी, ये अंतर है। क्योंकि तो उसके अभी लिए भी फिर देखें तो, एक सेकेंड, अभी भी जी देखें तो इसका आशय क्या है इस स्टेप का, कि हम देखें कि हम संवेदना से अलग हैं, है ना। जी जी संवेदना हो ही नहीं रही है ऐसा तो बात नहीं हो रही, संवेदना तो बिल्कुल, हो रही है। जी हम अपने आप को इससे अलग देखें तो हमें जी अपनी जिम्मेदारी दिखेगी शरीर के साथ। जी अभी क्या हो रहा है कि हम उस दर्द में इतना घुस जाते हैं, उसी के साथ इतना आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि फिर हम दुखी हो जाते हैं उसको लेके, जी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते खुद को। डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो जी इन दोनों को डिफरेंशिएट करके देखेंगे तो जी दिखेगा कि भाई ये शरीर मेरी जिम्मेदारी है। तो जो भी जी अभी दर्द उठ रहा है जी उसको लिए मैं क्या कर सकती हूँ, है ना, जी कि इस चीज को मैं ठीक करूं। और ये भी देखें कि भाई ऐसे टाइम में हर किसी को दर्द होता है ऐसा भी नहीं है, हर हाँ, अलग महिला इस अलग, दर्द किसी से को अलग गुजरती है। अवस्थाओं में होता है। हाँ वही वही, तो जी उसके पीछे भी जो कारण है वो भी धीरे धीरे दिखेंगे, है ना। तो अभी हमें लगता है कि ये तो भाई क्या मुसीबत आ गई, हमने तो हाँ, किया किसी नहीं। किसी नहीं, को किशोरावस्था में ज्यादा है, किसी को मेनोपॉज के वही टाइम वही पे ज्यादा है, वो ऐसा है। वही, तो जी ऐसा क्यों हो रहा है इसके पीछे भी जाएंगे तो कुछ और खुलासा होगा, उस पे भी जी रिसर्च हो तो बढ़िया होगा, है ना। हाँ, बस ये है कि पर चलिए, हम लोगों को प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी कि उस दर्द के वही, साथ इन्वॉल्व ना हो पाए। अब वो शुरू कैसे में, करेंगे, वो आप ही मार्गदर्शन दीजिएगा। हाँ, शुरू में जी जो इतनी तीव्र संवेदनाएं है ना, जी उनके साथ भिड़ने के पहले आप जो छोटी हल्की छोटी फुल्की संवेदनाएं हैं उनमें हाँ, ये अपने आप खुजली और को मच्छर अलग काटने देखने का वाले। प्रयास करें, है ना। जी जैसे जी जैसे उसमें दिखेगा कि हम अलग हैं संवेदना से, फिर जो जी आगे ज्यादा तीव्र संवेदना है उस पर भी हम काम कर पाएंगे। ठीक है ना। जी ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, एक दो हैंड्स और रेस है, मुझे लगता है ये स्टेप को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्टेप 4 का ही स्लाइड खोल दें। तो स्टेप 4 में जब हम ये प्रश्न अपने आप से पूछ रहे थे, क्या मैं संवेदना हूँ, क्या मैं संवेदना में हूँ, या क्या मैं संवेदना से अलग हूँ, तो ये दिखेगा कि मैं संवेदना तो नहीं हूँ, मैं संवेदना में हूँ ऐसा भी नहीं है, मैं संवेदना से अलग हूँ। इसीलिए मैं इस संवेदना को जब चाहे तब पढ़ सकता हूँ, पढ़ने के लिए बाध्य हूँ ऐसा नहीं है। तो शरीर के विभिन्न भागों में किसी भी जगह होने वाली जो संवेदना है उसको हम अपने निर्णय अनुसार पढ़ते हैं। भले ही हमें अभी बेहोशी में लगता हो कि इसको पढ़ने के लिए हम बाध्य हैं कोई कोई संवेदनाओं को, लेकिन निर्णय अनुसार ही हम पढ़ते हैं। अभी भी जो तीव्र संवेदनाएं हैं ये भी दिखेगा कि कहीं ना कहीं हमारे में ये शरीर के संरक्षण का भाव तो बना ही हुआ है ना। चाहे हम अपने आप को शरीर मानकर ये करते हैं या अपने आप को शरीर से अलग देख के अपनी जिम्मेदारी के तौर पर इस चीज को देख के करते हैं, तो उस संरक्षण के भाव के तहत हम ये देखें कि संवेदना का पर्पस क्या है। तो संवेदना कुछ उठ रही है, स्पेशली तीव्र संवेदना, यानी कि शरीर की व्यवस्था में कुछ गड़बड़ है। तो हमारा ध्यान इस पर जाए, यदि हम अपने को शरीर से अलग देख के इस संवेदना को पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान इस पर जाएगा कि शरीर की व्यवस्था में कुछ गड़बड़ हुई। अब इससे आगे हम ये भी
इस पर भी विचार करेंगे कि ये जो गड़बड़ हुई इसको कैसे ठीक किया जाए ताकि शरीर वापस एक व्यवस्थित ढंग से चले। तो ये संवेदना का आशय है ना। बिल्कुल ही हम उस चीज को नजरअंदाज कर दें ऐसा भी बात नहीं हो रही। तो संवेदना, जो तीव्र संवेदनाएं हैं, उनको हम रिस्पॉन्सिबली उनके साथ डील करें। देखें कि ये शरीर में कुछ अव्यवस्थित हुआ, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, है ना। उसकी हम क्या जिम्मेदारी ले सकते हैं, उसमें हमारी क्या भागीदारी हो सकती है, उसको तय करें और फिर जो भी स्टेप्स लेने हैं वो लेंगे ताकि शरीर में ये जो गड़बड़ हुई उसको हम ठीक कर पाए। तो अल्टीमेटली ये देखना है कि मैं संवेदना से अलग हूं या मैं शरीर से अलग हूं। मैं एक भिन्न इकाई हूं, शरीर से भिन्न हूं, लेकिन शरीर के साथ सहअस्तित्व में हूं निर्णय पूर्वक, और उसकी जिम्मेदारी मेरी, मतलब शरीर की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, ये देख पाना। तो आज तो समय नहीं बचा इसके लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, लेकिन दिन भर में इस अभ्यास को अपने अंदर चलाते रहेंगे। इसको कोशिश करेंगे देखने की कि संवेदनाओं को जब हम पढ़ते हैं तो हम अपने आप को संवेदना से अलग देख पाते हैं या नहीं, है ना। चंद्रशेखर जी, अगर कुछ ब्रीफली रखना चाहें तो बहुत ब्रीफली रख सकते हैं, समय ऑलमोस्ट होने वाला है, 1-2 मिनट है। चंद्रशेखर जी। जी दीदी, नमस्ते दीदी। जी नमस्ते। दीदी, सबसे भाव, फीलिंग सबसे सटलर है दीदी। क्या भाव शून्य भाव सबसे सटलर? भाव से और सूक्ष्म है और ऊपर की क्रियाएं। फीलिंग या भाव है एट द लेवल ऑफ जो इच्छा का लेवल है ना, जो हमारा मन जिसको बोलते हैं, इच्छा विचार आशा। तो इच्छा के साथ भाव जुड़ा हुआ है फीलिंग। इससे भी और सूक्ष्म है बोध, अंडरस्टैंडिंग, वहां की क्रियाएं। उससे भी और सूक्ष्म है अनुभव की क्रिया, है ना। तो भाव के पीछे भी हमने अगर जो अंडरस्टैंडिंग है, बोध है, वहां गड़बड़ है, हमने कुछ और ही माना हुआ है, तो वहां से भी गड़बड़ हो सकती है। अल्टीमेटली हमको अनुभव की क्रिया तक ही पहुंचना पड़ेगा, वहीं से हमें ठीक ठीक अपना नीचे की क्रियाओं को हम ठीक कर पाएंगे, जो कि बात पहले हुई थी। ठीक है ये। हाँ दीदी, हाँ दीदी, मगर एनर्जी लेवल जैसे ऐसा भाव से और ऊपर जाते 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 एनर्जी लेवल हमारा हर्ष कम होता है, मतलब एनर्जी वेस्ट, मतलब। कि हम अगर देखें ना, एनर्जी यानी हम सब भी एनर्जी ही है ना। सेल्फ भी एनर्जी है, बाहर भी जड़ में भी देखें तो बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, एनर्जी है ना। तो जैसे हम दीदी पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट करे तो ज्यादा एनर्जी, नेगेटिव थॉट तो कम, ऐसा कुछ ये रिलेशन रहता ना दीदी? हम पॉजिटिव सोचे ताकि एनर्जी वेस्ट कम हो जाए, ठीक ऐसा है, कुछ इसकी बात हम और मेडिकली डिटेल में कल कर सकते हैं, बट कर सकते हैं। वेरी ब्रीफली अगर मैं कहूँ तो अभी भी आप देखें तो एक जड़ एग्जांपल ले लेते हैं। लाइट कहीं से डिफ्यूज तरीके से फैलती है, उसी को आप हाँ कॉन्सेंट्रेट करके लेजर के फॉर्म में करते हैं तो उससे ऑर्गन्स भी कट हो जाते हैं, स्टोन्स भी कट हो जाते हैं, किडनी स्टोन्स, ये सब, है ना। वो यस कैसे हुआ? उस सारे को आपने एक फोकस दे दिया। वो लाइट, लेजर थेरेपी आपको पता ही होगा ना, हाँ उससे दीदी, इतना सब हो सकता है।
तो अभी हमारे जो विचार हैं वो स्कैटर्ड रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। अगर हम हाँ दीदी। फोकस करके एक डायरेक्शन में उन थॉट्स को एकाग्र करके वहां ध्यान देंगे तो हो सकता है बहुत कुछ और संभव हो, है कि नहीं? बट इसकी बात कल और डिटेल में हो सकती है अगर आप चाहें तो। अभी तो हाँ समय, दीदी, जरूर जरूर। ठीक है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते। प्रीति जी, रशपाल जी, आपके प्रश्न छूट गए या ऑब्जर्वेशन, कल अगर आप 6:30 को हैंड रेज कर देंगे तो हम आपके ऑब्जर्वेशंस ले लेंगे। यशवंत जी। जी दीदी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर चर्चा रही आज। सभी साथियों का भी इस सत्र में उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद। चैट बॉक्स में कुछ मैसेजेस है। एक मैसेज हमारे इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप्स जो इस नवंबर के मंथ में होने वाली है उसके बारे में है। एक मैसेज हमारी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है उसकी रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो हम सभी इसे जरूर अटेंड कर सकते हैं। और उसी तरह से एक मैसेज हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में है। और उसी के साथ में जो प्रीवियस मॉर्निंग सेशंस हुए थे उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, उनकी लिंक वहाँ से मिल सकती है। तो सभी साथी इसे का सदुपयोग कर सकते हैं। तो सभी का धन्यवाद, नमस्ते। तो दीदी आज के लिए हम रुक जी रोक सकते हैं। सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्ते।